चलिए शुरू कीजिए। तो भागवत गीता चैप्टर 4 श्री भगवान वाचा वर्स 5 बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना तान्य अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थम परन्तप. For me there have been many past lives, and for you also, Arjuna. I know them all, but you do not know, O Arjuna. Ajo api sannavya atma bhutani mi shwa aro api san prakitam swam adhisthaya sambhavayatma maya ya. Although I am unborn, eternal, and Lord of all beings, holding nature under my control, Prakritim Swami Adhisthaya, Sambhavayam Yatma Maya Ya. I take birth through my own power. Then in this verse 7, which is very famous, all of us know about it. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanam dharmasya tadatmanam srijamyaham. Whenever righteousness undergoes decline, glanir bhavati, O Arjuna, and unrighteousness increases, then I create myself. I take birth. परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे. Verse 8. To protect good people and to destroy the evil, to establish righteousness, I take birth in each age. Verse 9. Janma karma cha me divyam evam yo veti tattvata tyaktva deham punarjanma naiti mam eti so Arjuna. My divine birth and deeds, one who knows them truly, giving up his body no to another birth, he does not take another birth, but it comes back to me, O Arjuna. Vit rag bhaya krodha manmaya mam aprishita bhavo jnana pasa puta mad bhav magata. Free from desire, raga, bhaya, krodha, fear and anger, manmaya, mam aprishita, absorbed in me, resorting to me by the fire of knowledge, purified them all, they reach me, my state. Verse 11, ye yatha ma prabadhante, tam astathayo bhajamyam, mam vartman arvartante, manushya parth sarvasha. In whatever way they seek me, ye yatha mam prapadante, seeking, I bless them accordingly. Bhajamyam. Mam vartman arvartante. People follow me my path in many ways, O Arjuna. Verse 12. Kang shanta karmana siddhim yajan ih devata chipram hi manushe loke siddh bhavarti karmaja. Desiring success through rituals, they worship the gods here. In this world of men, quickly does success arise from ritual. यहीं रुकते हैं. ये वर्स 12 हो गया. बढ़िया, डेफिनेटली यही रुकते हैं. चलिए अभी अपनी अपनी टिप्पणी भी कीजिए भाई सब लोग. तो वर्स 6 से शुरू, वर्स 5 तो हम लोगों ने कवर कर लिया था. वेर गॉड भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब याद है. क्योंकि अर्जुन को डाउट हो गया था कि ये अभी बाद में पैदा हुआ है, अभी कैसे ये नॉलेज दे सकता है सन गॉड को, फिर मनु को, एंड देन ऋषिस. तो देन उसी की डिस्कशन में, कंटिन्यूएशन में वर्स 6 में
भगवान ये कह रहे हैं कि even though I am unborn, eternal, but I am the Lord of all beings. I take birth because of my own, using my own power. In other words, Bhagavan is projecting himself as an avatar in this world. उसका एक सिमिलर आत्म माया, हाँ, my own power ना, आत्म माया. यहाँ आकर कई लोग जो माया है उसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज लाते हैं कि वो जनरली हम माया को समझते हैं कि भाई ये यमसा माया जो नहीं है मगर प्रतीत होता है कि है, वो माया। मगर यहाँ माया को शक्ति की तरह से भी प्रयोग किया गया है कि मैं अपनी माया मतलब अपनी शक्ति से my own power sambhavami, I take birth. हाँ, आत्म माया, I take birth with my own maya, with my own powers, with my own power, with my own शक्ति। तो आत्म माया के वजह से यहाँ माया को कई बार शक्ति के रूप में भी समझा जाता है। चले आगे चले। हर्ष जी, हाँ जी, ये जो हमारे नेचर का क्रिएटर हैं भगवान, नो उनको हमें करेक्ट करने के लिए जन्म लेने की क्यों जरूरत पड़ती है? ये मेरे प्रश्न मन में बार बार आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है राम विनोद जी। वो तो जो है आपका वॉल्यूम कम है। मेरा राम विनोद जी की आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, हमें तो ठीक आ रही है। अच्छा जी, तो मेरा क्या होगा फिर? तो 100% है इधर से। तो ऐसा मतलब ये भगवान जी को बार बार जन्म लेकर के करेक्ट करने की जगह, भगवान तो सब कुछ उनके हाथ में है। वो तो बुराई को क्रिएट ही नहीं करते, सिर्फ अच्छाई क्रिएट कर सकते थे। ऐसा क्यों है? मुझे हर जगह देख करके ये एक लगता है कि भगवान ने जो कुछ भी कहा है, भगवान ने जो कुछ भी किया है, वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से किया है। वो प्रकृति के बियॉन्ड नहीं गए हैं। मतलब थोड़ा बहुत कहीं अतिशयोक्ति दिखती है, बट मोस्टली वो प्रकृति के साथ ही किया है उन्होंने। दैट मींस प्रकृति के नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न मेरे मन में बार बार आता है कि भगवान को इस दुनिया को करेक्ट करने के लिए जन्म लेने की क्या जरूरत थी? बहुत बढ़िया, मकरम जवाब देंगे? मैं अभी सोच रहा था कि ये जो प्रभात कह रहे थे, हरिकेन और उसकी बात कर रहे थे, ऑटो एडजस्टमेंट बाय प्रकृति। तो जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि किसी भी चीज को एग्जिस्ट करने के लिए उसमें दो भावों का होना जरूरी है। अगर किसी भी चीज का विपरीत भाव एग्जिस्ट नहीं करता तो वो चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती। एक तरीके से जैसे हम कहेंगे अगर खुशी और दुख, हाँ, खुशी और दुख, अच्छाई और बुराई आएगा। जैसे हम रोशनी और अंधेरे की बात कर लें, रोशनी की एग्जिस्टेंस को हम तभी रियलाइज करते हैं जब अंधेरा ना हो, होता है, उसके सापेक्ष देखते हैं। मतलब हर चीज को एक किसी दूसरी चीज के सापेक्ष देखा जाता है, तभी उसकी एग्जिस्टेंस महसूस होती है। जैसे राम विनोद ने कहा कि अगर खुशी होती, कोई दुख ना होता, तो खुशी का भी एहसास ना होता। मतलब इट विल बिकम ए गिवन। हाँ नहीं बिल्कुल तो आप सही रियलाइज ही नहीं कर रहे कि वो कोई चीज है। मतलब अगर ऐसे सोचो कि रात नहीं होती तो दिन की भी क्या वैल्यू रहती? दिन नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि इट वुड हैव बीन ए कांस्टेंट थिंग, हमेशा ही रहती वो।
इसका मतलब दोनों एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। हाँ। करेक्ट। तो होता क्या है जनरली कि किसी भी एस्पेक्ट के दोनों एस्पेक्ट्स में एक बैलेंस है, या और जब भी वो बैलेंस ऊपर नीचे होता है, जब ज्यादा टुवर्ड्स नेगेटिविटी वो जाने लगता है बैलेंस किसी भी, क्योंकि कंप्लीट बैलेंस में कभी नहीं रह पाता कुछ भी चीज, तो जब उसकी नेगेटिविटी का बैलेंस की तरफ इम्बैलेंस हो जाता है ज्यादा, तब वो कहते हैं कि मैं एक उसके अंदर करेक्शन करने के लिए मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। हाँ, कि वर्स जिससे 6-7 वही कह रहा है। साकार रूप में, निर्गुण रूप में तो सदा ही मैं हर जगह व्याप्त हूँ, लेकिन साकार रूप में प्रकट मैं तब होता हूँ जब वो बाढ़े असुर अदम अभिमानी, कहा है ना। बाढ़े मतलब ये नहीं थे तो थे ही, जितने थे उतने ही रहते तो ठीक था, लेकिन जब बढ़ गए तो डिसबैलेंस हो गया, तो उस बैलेंस की करेक्शन के लिए, उसको समता में लाने के लिए मैं जन्म लेता हूँ साकार रूप में। मुझे तो तो ये फिर समझ क्वेश्चन तो फिर भी वही रहा ना कि वो वहां से बैठ के रिमोटली भी तो कर सकते थे। नहीं, उसमें जो जन्म लेने का एस्पेक्ट है वो क्या है? तो मैं आपको जो इसमें क्या है कि मैं इसको वैदिक रूप से लेने की पसंद करता हूँ। ये जो रामनोद जी का आप जो ये सब कह रहे हो, जो अद्वैतवाद में है ना, जो अद्वैतवाद है ना, वो ले जाके इनको सेटिस्फाई करता है। जब आप द्वैतवाद में रहेंगे तो तुम्हें सदा लगेगा कि ये ईश्वर है या दूसरा वाला ईश्वर है। तो ये जो है, अगर आप उसका शंकराचार्य की है बगैर श्री लक्ष्मीधर की एक पोएम वो है जो चिन्मयानंद जी ने पढ़ाई थी मुस्लिम लोगों को। उसमें वो एक कैरेक्टर, मतलब उसके आर्गुमेंट बड़े वो हैं क्लियर। उससे अगर आप अद्वैतवाद करते हो ना, तो ये प्रश्न ही नहीं उठते। ये प्रश्न उठते हैं जब आप द्वैत या त्रित्ववाद या फिर स्वामी दयानंद का 3 स्टेज पर लाते हैं वो अपनी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए। और ये द्वैतवाद जो है ये दूसरों का है। तो आई थिंक इसका आंसर है द्वैतवाद। और जो तुमने कहा कि वो प्रकृति के नियमों को पाल करते हैं, तुम उसको बाद का देख रहे हो जो अद्वैतवाद वाला होगा था वो प्रकृति के नियम भी पहले उसने ही बनाए हैं, देन देववाद होती। तुम उसका सबसेट देख रहे हो, भगवान उसका सुपरसेट है अद्वैतवाद के। मैं maybe I'm not clear that way, but that's what I'm saying। मैं ड्युअलिटी का क्वेश्चन आता है कि नेचर, ईश्वर और ये और वो जो है, ये डिफरेंट रूप जो हैं, अंधकार भी उसका बनाया हुआ है, प्रकाश भी उसका ही बनाया हुआ है। ये द्वैतवाद की है प्रॉब्लम। अद्वैतवाद में जब आप करते हो कि ऊपर जाकर ये वन पॉइंटेड फंक्शन है, that's the way I look it। I think the question more lies on he has the capability to fix it from there only. Why there is a reason for him to come down to the earth and be born to fix this? So उसका भी कोई उनका वो पीछे उसका आइडिया होगा कोई कि वो ऐसा करते हैं, प्रॉब्ली गाइडेंस देने के लिए लोगों को, जिससे कि लोग खुद भी कर सकें, हर बार उनको नीचे ना आना पड़े, या कुछ है उसका और भी, वो समझना चाहते हैं। वैसे तो भगवान ने उसका आंसर वर्स 6 और 7 में दिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। I create myself to take care of the adharma। धर्म गिलानी होने क्यों देते हैं? वो तो कंट्रोल कर सकते हैं सब कुछ। अगर धर्म गिलानी, अगर दोनों एस्पेक्ट चाहिए तो इट्स ओके, इट्स ए पार्ट ऑफ नेचर। बट अगर धर्म गिलानी हो रही है जिससे कि भगवान को लग रहा है कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनको जन्म लेकर के उसे करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, उसका कुछ रीजन होना चाहिए कि व्हाई ही हैज टू कम। उसके पीछे रामनोद जी ये है कि तुम सोचते तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं और है, और उस मास्टर की गलती है हमारी। प्रिंसिपल साहब जो कंट्रोल नहीं कर रहे रिमोट से या वैसे भी मार पीट कर तुम्हें। That's because the model is that कि मेरे बजाय मेरे बॉस जो है, जहां भी मैं कार्य करता हूँ, मेरी गलतियों को मेरा बॉस को ठीक कर देना चाहिए। ये वो मॉडल की प्रॉब्लम है, ये कि हम चाहते हैं कि हम उसको ठीक ना करें, हम अपने कर्तव्य ना करें, और वो आके हमको जो मिरेकल करके हमें ठीक ऊपर सी करके भेज दें। That's what your model is।
देखिए, ठीक करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक करने के लिए ही संविधान है, ठीक करने के लिए ही गवर्नमेंट रन करती है, जिसको कि सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए मतलब अच्छे लोग लीड करते हैं। तो उन्हीं में से एक अच्छे लोग अगर कृष्ण भगवान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये बोले कि भगवान को अवतरित होना पड़ता है इसके लिए, ये मेरी समझ में नहीं आता। आज एक मतलब कोई भी एक नेता का नाम ले सकते हैं हम, वो नेता अपनी तरफ से कोशिश करता है कि सही डायरेक्शन में कंट्री को ला सके, लोगों में अच्छाइयाँ पैदा की जा सके, रोल मॉडल एक हो जाता है, रोल रोल मॉडल हाँ, सेट हो जाता है। एक रोल मॉडल, देन इट्स ओके। कृष्ण अब उस समय के बहुत बड़े रोल मॉडल रहे होंगे, राम की बहुत सारी चीजें आज भी जो है एप्लीकेबल हैं, वो सब परफेक्टली करेक्ट है। बट ये उसमें आना कि भगवान को अवतार लेना पड़ेगा ये सब करेक्ट करने के लिए, ये थोड़ा मुझे मतलब मैं बाहर से जब देखता हूँ तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। क्वेश्चन को तो actually इस क्वेश्चन को और भी पीछे ले जाया जा सकता है कि अगर आप इसके हिसाब से तो ये भी पूछ हम सकते हैं कि भाई जब सब चीजें उन्हीं से निकली और उन्हीं में मिल जानी है, तो फिर ये सारा हिसाब किताब ही क्यों, सारा संसार क्यों बना है? नहीं, एक इसका ये भी है जो कर्मा धर्मा की थ्योरी हमारी, बिकॉज ऑफ विच वी टेक बर्थ इन ऑन दिस अर्थ, राइट? बिकॉज some of the karma phala were not fructified for us in this life, so we take birth again to get the results of those karmas which were not fructified in the last birth. तो वैसे ही भगवान का तो कोई कर्मा नहीं है, कोई उन्होंने तो he is away, he is much above than karma dharma. तो उसमें एक हमारे यहाँ डिस्कशन हुआ था, स्वामी ने बताया कलेक्टिव कर्मा prayer that we do whenever there is a decay of righteousness, dharma, then due to the collective karma through our prayers, Bhagwan takes birth to fix. जहाँ तक पिछले जन्म के कर्म या पिछले समय के कर्म की बात है, वो कृष्ण और राम की जो कुछ भी उनके बारे में कहा गया है, उसमें भी ये आता है जगह जगह कि पिछले जन्म में वो ये थे, उन्होंने ये किया था, इसलिए ऐसा हुआ था, इसलिए अब ऐसा हो रहा है। ऐसा भी बहुत जगह आता है। कृष्ण जी का मतलब वो पैर में जो है कमल था या वो मतलब कैसे आके क्यों उनकी डेथ हुई, क्योंकि राम ने वहां कुछ किया था, वो भी कर रहे हैं आप जगह जगह। तो उसके ऊपर मैं इससे थोड़ा सा हटकर संदर्भ सुनाता हूँ आपको कि ये क्यों है। एक बार श्री राजगोपालाचार्य से उन्होंने he was the first Indian who wrote रामायण महाभारत in English। आप सबने सुना होगा राजगोपालाचार्य का नाम। उनके सामने एक बार जो थी, ये श्री राम के ऊपर अक्सर जो है लोग बाग जो है दो आरोप खटाक से लगाते हैं, अग्नि परीक्षा और बलि का हत, कि ये उनके राइट वर्क नहीं थे। तो उनके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप लोग जो अवतार आया है, अवतार आने के बाद जो उसने अपना कर्म कर दिया है, अवतार एक पर्टिकुलर रीजन से वो आए, उसके बाद चूंकि वो उन्होंने मनुष्य रूप में आए थे, देन ही स्टिल हैज टू लिव हिज लाइफ। सो ही अवतारित जो आत्मा थी, अवतार वाला जो पंथ था, वो तो रावण को मारते ही चला गया था। Now he was the king of his state and what were rule and regulation at that time, कि धोबी ने ये कहा और उन्होंने अग्नि परीक्षा की, ये सब कर्म जो हैं ये बाद के उस टाइम की सोसाइटी के जो रूल और रेगुलेशन थे, अकॉर्डिंग दैट ही फॉलोड इट। तो जो आप ये बात कह रहे हो कि राम क्यों है, ये हिंदुओं की खास आदत है यार, राम विनोद के हम रावण के भी गुण अच्छे बताने लगे। हम लोगों को यह है, हम हर चीज का एक कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि धृतराष्ट्र अंधा क्यों था, उससे पहले जन्म में उसने 100 हंस खा लिए, फलानी। ये हमारी, जब तुम्हारी मूवी खत्म हो जाती है ना कोई, उसके बाद आप घर आते हो, सोचते हो इसका सॉल्यूशन तो ये भी था, इसके बाद ये कर सकता था। ये हिंदुइज्म की खास वो है एक बुराई। हम अपना जो हमारी समझ में बहुत सी चीजें नहीं आती है, राइट, बट हम उसके ऊपर मतलब आज तो तुम डीएनए करा लो, जब हमारे डीएनए के टेस्ट नहीं थे, जैसे तुमको जब बच्चे से थे ना, किसी को पापा कहते थे, किसी को माँ, और उसको तुम आज भी बिलीव कर रहे हो और मैं भी आज बिलीव कर रहा हूँ।
उस पर तो चुपचाप चलते रहे, किसी ने जाकर ये तो नहीं कहा तू मेरी माँ नहीं है, ये मेरा बाप नहीं है। आज कोई कह सकता है शायद डीएनए से, यू और मी आर नॉट इन दैट जनरेशन, है। तो हम कुछ चीजों को एज इट इज खड़ाक से ले लेते थे कि ये बाबा जी हैं, ये फला नहीं है, उसके लिए हम कोई बहस नहीं करते थे। बट हम जो बिलीफ कारण सिस्टम है ना, ढूंढते रहते, हम बहुत कारण चीजें ढूंढते हमारे थे बिलीफ उसे। सिस्टम पे है ना, बिलीफ सिस्टम पे। या आपने बताया कि राम ने जब रावण को मार दिया उसके बाद उनका जो देवीय मतलब जो भगवान का वो था वो खत्म हो गया। या मेरी समझ अवतार नहीं आता अवतार कि सदा के लिए भगवान नहीं रहता। एक रावण को मारने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ेगा? जो- कोई भी हम में से क्योंकि कोई मनुष्य हो सकता है। जैसे क्योंकि राम ने उस टाइम के राम विनोद और अशोक कुमार त्यागी उसे नहीं मार पा रहे थे भैया। किसने कहा? वो भी कोई ना कोई ऐसा होगा। ऐसा क्या था बताइए ना आप। See, No, separate मतलब the- I know these are the big things. I'm not disputing that. But Yes. क्वेश्चन ये है कि ये जो है, जो आप एनालॉजी जो जब देते हैं ना, ये हम जो हमारे सामने प्रकृति के हिसाब से हम एनालॉजी देते हैं, बट दीज थिंग्स आर बियॉन्ड दैट। अगर वो उसमें होती तो हर घर में वो होता। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द वे आई लुक इट। हम हिंदुइज्म में ये पुराणों में तुम पढ़ लो, ये क्यों हुआ जी, इसका तो ये कारण ये था, फलाना कारण था। अबे भैया उसको पढ़ के उसमें विश्वास करके आगे बढ़ो। उसका जो है ये उसको घुमाने की चीजें हैं कि रावण जी बड़ा अच्छे थे जी, फलाना जी बड़ा अच्छा था। अबे साले कोई अच्छा नहीं था, अच्छा होता तो उसकी पिटाई क्यों की थी हमने? हाँ, यह साले का गीता का पाठ चल रहा है भैया, ये रविंद्र गौर नहीं है। ओके, आई एम गीता में भी सॉरी। गीता में अच्छा भी नहीं, साले मैं शब्द है, पता ये है? एक मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जो भगवान ने सृष्टि बनाई विद द इंटेलिजेंट ऑर्डर एंड मटेरियल स्टफ, जो कि हम आप पेड़ पौधे धरती के अंदर जो भी है, तो एक इंटेलिजेंट ऑर्डर, जैसे धर्मा को अगर आप एनालाइज करें, ध्री वर्ड से है जिसका मतलब सपोर्ट करना। तो भगवान क्रिएटेड दिस यूनिवर्स विद द सपोर्ट स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंट ऑर्डर। इट हैज टू गो इन सर्टेन ऑर्डर, नहीं तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। जैसे ग्रेविटी बनाई, बिकॉज ऑफ दैट ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन इन सर्टेन डिस्टेंस। अगर उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो गई तो गया, राइट। अगर आप प्रकृति को देखें ना तो ऐसी ऐसी अजूबी चीजें हैं, ऐसी ऐसी ग्रेट चीजें हैं कि भगवान का क्रिएशन बहुत बड़ा बहुत है। बहुत बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ। मतलब हर चीज, इफ यू एंटर एनीवेयर यू फाइंड, अरे बाप रे क्या नहीं है, हाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग। सो इतना सब कुछ है रियलाइज करने के लिए। एक ये नहीं कि भगवान आकर के रावण को मारने के लिए वो आएंगे, ये मुझे बड़ा नहीं, तो अजीब वही मैं लगता कह है। रहा हूँ कि धर्म जो उनका ऑर्डर जब डिस्टर्ब हो रहा है, देयर इज लॉट ऑफ अधर्म, तो भैया वो जिन्होंने बनाया तो वही तो आएगा ना। हमारे पास तो ब्लूप्रिंट है नहीं, हमारे पास तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है नहीं, कैसे फिक्स करें। तो भगवान को आना पड़ेगा ना, उन्हीं के बनाए हुए ऑर्डर से तो चल रहे ऐसी हैं। ऐसी कोई चीज रावण में नहीं थी जो आज नहीं एग्जिस्ट करती है। आज भी लाखों हजारों रावण एग्जिस्ट करते हैं और उनको मारने की प्रक्रिया चलती रहती है। क्या आप बोलते हैं कि रावण जैसी प्रकृति वाले आज नहीं है? नहीं नहीं, अभी भी है, लेकिन अभी पता नहीं वो पाप का घड़ा उतना भरा नहीं है। वैसे मोदी आ गया है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रकृति इतनी महान है, उस क्रिएटर का क्रिएशन इतना महान है कि उसके आगे सब कुछ नतमस्तक है। मतलब उसको देख करके ही आप हर्षित हो सकते हैं, इतना सब कुछ है। ये सोचने के लिए कि भगवान राम को या कंस को मारने आए, ये मुझे बड़ी छोटी सी बात लगती है। आई डोंट थिंक कि इसके लिए भगवान को खुद को क्रिएट करने की जरूरत थी। नहीं, उन्होंने तो वैसे वो वर्ष 6 और 7 में आपका आंसर तो वो दे रहे हैं। विल कम टू दैट। नाउ आई एम सेइंग हाँ। जैसे लाइक कोरोना आया, कोरोना किसी कारण से आया है, ओके, कोरोना का काउंटर भी अवेलेबल है। नाउ हाउ नंबर्स आर कमिंग डाउन, हाउ नाउ आवर सिस्टम इज एबल टू फाइट बैक। इट्स ऑल द क्रिएशन ऑफ द गॉड ओनली, यू नो। सर्वाइवल, कोरोना को भी सर्वाइव करना है, हमें भी सर्वाइव करना है, इसका बैलेंस चलता रहता है। You know how exactly minute changes comes in the nature to counter the things, to survive, to continue. This all exists. ये इसके लिए भगवान को आकर के करने की जरूरत, आई डोंट थिंक। देयर सो मेनी रावण जैसे लोग अवेलेबल हैं, रावण जैसी बुराइयां अवेलेबल हैं आज भी, और वो अपने आप काउंटर होती रहती हैं, उसका
कंटिन्यूस प्रोसेस है काउंटर होने का। हमको तो यही लगता है कि जब जब किसी के पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल की कमी हो जाती है, कोई मशीन खराब हो गई, मैकेनिकल इंजीनियर जिसने बनाया था उसी को मालूम है कैसे ठीक करें। अगर हमारे पास है तो हम ठीक कर लेंगे, नहीं तो फिर भगवान को आना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। अर्जी को लाइट थ्रो करो। अंग्रेजी की किताब में मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम क्या करें। That's the point actually. 1% सृष्टि को देख रहे हैं, 99% सृष्टि जो है उसको हम देख ही नहीं पा रहे, और सॉल्यूशन 99% में है, ढूंढ में 1% में रहे, तो भी क्या करें। अभी हम अंत में तो सवाल खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जवाब मिल जाते हैं, ऐसा होता है कि सवाल खत्म हो जाते हैं। बट वो अंत तक पहुंचने के लिए तो वो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो क्या करें। यहाँ पर तो कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर सकते हैं, जो ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसकी बात कर सकते हैं। जवाब आपको जो मिलेगा वो आपके अंदर से ही मिलेगा आपको। मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो मन है, ये माइंड जो है, इसकी बड़ी शक्ति है। ये हर जवाब के आगे एक सवाल कर सकता है। कोई भी जवाब आप इसको दे दीजिए, ये एक आगे बढ़ा के उसका सवाल कर लेगा। तो ये इसकी बड़ी शक्ति है मन की। बट ये हम भूल जाते हैं कि ये मन की शक्ति आई है, उस शक्ति के पीछे कौन सी शक्ति है। जो मन की वो जो टेंडेंसी बनी है, उसके पीछे क्या शक्ति है। मगर अभी हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि भाई कर्म योग की बात चल रही है। कर्म जो है वो कर्म योग और कर्म तभी तक संभव है जब तक कर्म को करने वाला प्रेजेंट है। जब तक मैं हूं तब तक कर्म भी है और कर्म फल भी। जब मैं नहीं हूं तो ना कर्म है ना कर्म का फल है। तो अब भगवान इस कॉन्टेक्स्ट में उसको जवाब दे रहे हैं जो मैं हूं, जिसका एक मैं है, क्योंकि वो कर्म के बंधन में फंसा है। कर्म के बंधन में फंसने के लिए मैं का होना आवश्यक है। दो प्रिंसिपल है ना, दो रूल्स हैं कर्म के लिए। एक रूल है कि मैं का होना आवश्यक है, दूसरा रूल है कि काल का होना आवश्यक है, समय का। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होती हैं तब तक ना कर्म हो सकता है ना कर्म का बंधन हो सकता है। अभी अर्जुन के जितने भी सवाल चल रहे हैं वो सब मैं के हिसाब से चल रहे हैं। मैं हूं, मुझे क्या करना है, मेरे सामने लोग खड़े हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे ये है, मैं लड़ूंगा तो ऐसे होगा, मैं नहीं लड़ूंगा तो वैसे होगा। मैं हूं और आप भी हैं। आप तो अभी पैदा हुए हैं मगर आप बोलते हैं कि पुराने हैं। तो हर जगह पर अर्जुन का मैं होना आवश्यक है। अब उस मैं के लिए जो जवाब है उस मैं को ही सेटिस्फाई कर सकता है वो। जब मैं नहीं है तो सेम जवाब उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। पहली चीज तो उस वक्त तो सवाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब मैं ही नहीं है तो सवाल कहां से आएगा। बट अगर उस वक्त सवाल आ भी जाता है तो जवाब उसका डिफरेंट होगा। अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ अच्छा कुछ बुरा। अभी वो द्वैत की बात भी हुई थी और रात और दिन की बात भी हुई, सब हुई, बड़ी ठीक बातें हैं सारी। बट अच्छा और बुरा वो मैं डिसाइड करता हूं। वो मैं हिंदुस्तान में बैठ के किसी और चीज को अच्छा बुरा कह सकता हूं और अफगानिस्तान में बैठ के किसी और चीज को अच्छा बुरा कह सकता हूं। वो डिसाइड करने वाला मैं हूं। और मैं हूं तो इसीलिए द्वैत है। द्वैत की एग्जिस्टेंस में मैं होना आवश्यक है।
क्योंकि जैसे ही हमने कहा था ना कि जब मैं हूं तो इंस्टेंटेनियसली मेरे अलावा भी है, अदर देन मी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं हूं इसलिए। और अदर देन मी का एग्जिस्ट करना ही द्वैत को माना है। इसी को हम कहते हैं द्वैत। मैं और भगवान, मैं और तुम, मैं और सृष्टि, मैं और प्रकृति के नियम, मैं और संविधान, मैं और नेता। तो ये सब द्वैत के अंदर मैं का होना, मैं के होने से द्वैत है, और मैं के होने से ही कर्म बंधन है, और मैं के होने से ही ये सृष्टि का जो जो प्रोसेस है, जो चल रहा है, उसका कंटिन्यूएशन जो चल रहा है वो है। अब देखिए, इसमें से अगर आप दोनों में से जो दो हमने बताया रूल है इसके, एक है क्या, मैं होना आवश्यक है, दूसरा है कि काल, समय का होना आवश्यक है। और समय के होने के लिए आपने बहुत सारी थ्योरी सुनी होगी, बट एक थ्योरी में सिर्फ याद कराने के लिए हम कहते हैं कि हर जो समय है वो सिर्फ नाव है, नाव। जिस वक्त आपका भाव सिर्फ नाव में चला जाता है, ऑटोमेटिकली कर्म का बंधन खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा कुछ रहता नहीं। तो इन दोनों, ये इसको बात को आगे करेंगे कभी, बट ये दोनों आवश्यक है, ये रूल है। इन दो रूल के अंदर जो मैं का रूल है वो इस वक्त भगवान उसको समझा रहे हैं। जब मैं अपने आप को मैं कह के ये सवाल करता हूं, तो मैं ये सवाल कर सकता हूं कि भगवान को आने की क्या जरूरत है। और ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अगर भगवान आके भी उसका जवाब दे देंगे, मैं उसका एक सवाल आगे कर लूंगा, क्योंकि ये तो मेरी क्षमता है, मेरे मन की जो शक्ति है उसमें ये क्षमता है कि एक सवाल में आगे कर लूंगा। वो क्षमता भी भगवान ने दी है। बट ये, हाँ, तो जब वो मैं समझ जाता हूँ तब ये सवाल खत्म होना शुरू हो जाता है। तब मैं समझ जाता हूँ कि मैं और मेरा मन अलग है, ये मेरे मन की क्षमता है, मगर मैं जो उसका देखने वाला साक्षी हूँ, जो उसका ऑब्जर्वर हूँ, जो मैं कॉन्शियस हूँ, उसमें ये मैं क्या, मैं जो है वो एक खेल है, वो एक गेम है, एक माया है, उसको मैं देख सकता हूँ। तब मैं ये सवाल नहीं करता हूँ, तो मेरा सवाल चला जाता है। तो आपके सवाल के दो ही जवाब हैं, एक इसका जवाब नहीं है, दूसरा ये सवाल चला जाता है। जवाब नहीं मिलता है, सवाल चला जाता है, क्योंकि जवाब चाहिए मन को। जवाब जो रियल मैं है, जो अंडरलाइंग मैं है, उसको जवाब नहीं चाहिए, वो तो शांत है। जवाब तो सिर्फ मन को चाहिए, बुद्धि को चाहिए। और बुद्धि को जवाब क्यों चाहिए? क्योंकि बुद्धि भी, हम ये बात भूल जाते हैं कि बुद्धि का जो फंडामेंटल नेचर है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को डिस्कवर करने का है। बुद्धि हमेशा क्वेश्चन करती है, क्योंकि इसको एब्सोल्यूट ट्रुथ का आंसर चाहिए। ये उसका फंडामेंटल नेचर है। बट वो क्या करती है बुद्धि? अदर देन मैं, मेरे अलावा बाहर का जो है वहां का ढूंढू मैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ को बाहर देखो। वो बाहर क्या मिलता है उसको मिलती है माया, उसको मिलती है प्रकृति। और प्रकृति को देखता है तो प्रकृति तो पूरी रिलेटिव है, एक के साथ दूसरी कंपैरिजन में चलती है हमेशा। तो वहां उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ कैसे मिलेगा? क्योंकि उसको तो सिर्फ रिलेटिव ट्रुथ मिलेगा। हर जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं, शायद मेरी लिमिटेड नॉलेज है, शायद ये गीता में जो कृष्ण बोल रहे हैं उस पे आते हैं। लेकिन अगर वही जब आप रामायण पढ़ें तो राम के ऊपर, राम कभी ये नहीं कहते कि मैं इसलिए आया हूं, मैंने ये किया है, मैं भगवान हूं। मतलब सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ दिस मेरे मन में एवरीथिंग आई वांट टू लर्न, बट ये प्रश्न बार बार आते हैं कि भगवान को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं भगवान हूं, मेरा ये रोल है, आपका रोल ये है। तो राम विनोद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये अशोक, मैं तुमने एक बात कही थी, मैं उसी के थोड़ा सा मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि हमारे धर्म के अंदर जो हम कहते हैं ना कि हम लोग सवाल करते रहते हैं, सवाल करते, तो ये अच्छाई भी है।
Oh, I know. जहां डाउट क्रिएट करती है ये जरूर है, मगर सवाल करने के बाद ही वो डाउट क्लियर हो सकता है, तो वो अच्छाई भी है उसकी। No, I understand. तो रामनाथ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप इस चीज को एक्सेप्ट ना करें कि भगवान को कोई कंपल्शन है कि वो उसको आना पड़ता है। सो अब नाउ यू फाइंड एन आंसर। किसी ने कहा था कि जो ऐसे होते हैं ना, व्हाट्स द पॉइंट, एक सेंटेंस है, व्हाट्स द पॉइंट। तो एक आदमी है, वो उसका मन का भाव ऐसा आ गया है कि हर जगह पे उसको मार पड़ी है बहुत, तो उसको कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो वो कहता है यार व्हाट्स द पॉइंट। बट वही आदमी को हम कहते हैं कि तुम ऐसे बोलते हो व्हाट्स द पॉइंट, इसके जब पूछो व्हाट इज द पॉइंट, इसके पीछे कारण क्या है, नाउ सडनली योर माइंड चेंजेस, व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द पॉइंट। तो व्हाट्स द पॉइंट को हमें व्हाट्स द पॉइंट इसमें करने का है, उसी को ट्विस्ट करना है हमें, मन के भाव को उसी को ट्विस्ट करना है। और जब ये जो आज सवाल आप पूछ रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा था मैं भी यही सवाल करता था, और मैं कहता था कि भाई ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, जो आपकी डेफिनेशन है भगवान की, वो डेफिनेशन मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, आई विल नॉट एक्सेप्ट। पहली चीज तो भगवान ये क्यों डिसाइड करेगा ये बुरा है ये अच्छा है? ये तो संविधान का काम है। ये तो इंसान करता है, मन करता है, बुद्धि करती है, हम लोग करते हैं, हमारी तरह थोड़ी है भगवान। भगवान के लिए तो सब कुछ अच्छा है, भगवान के सामने आप जाओगे तो कुछ बुरा तो खत्म हो गया, उसको तो बुरे की तो बात ही नहीं है उसके सामने। तो जब वो पहला सवाल ये मैं कहता था कि भाई ये तो गलत है बात, कि भगवान तुम्हें दंड देगा अगर तुम कुछ गलत करोगे, या भगवान तुम्हारे लिए ऐसा कर देगा या तुम अच्छा करोगे। तो ये डेफिनेशन भगवान की मुझे नहीं पसंद आई। इसका मतलब ये नहीं कि भाई बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, बहुत सारे लोग हैं उनके लिए आवश्यक है ये कहना उनको कि भाई भगवान तुम्हारे लिए ऐसे करते हैं, भगवान तुम्हारे लिए ऐसे करते हैं। तो बहुत टाइम तक मैं ये क्वेश्चन करता रहा, मैंने उसके बाद कहा भाई ये मैं एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे कि भगवान जो है वो मन आदमी की तरह, इंसान की तरह सोचता है। तो मैंने कहा कि ये वाली डेफिनेशन मैं नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो व्हाट्स द पॉइंट की जगह पे व्हाट्स द पॉइंट पे चला गया था। गुड, यू हैव आंसर्ड नाउ। अब आंसर तो आपको अपने आप मिलेगा, मैं क्या आंसर दूंगा मैं? ठीक है, हाउ आई लुक एट इट, ओके, आई फील यस। हाँ, बट यू आर राइट, इट डजंट सेटिस्फाई यू, ओके दैट्स फाइन। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज आप जस्ट मान ही लो, जब तक आई मीन यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। जब मैं नहीं मानूंगा तभी उसके आगे का सवाल करूंगा कि भाई अब ये इसका फिर आंसर है क्या। तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव तो यही है कि जब मैंने ये सारे सवाल किए, मैंने कहा यार ये सब बात मैं नहीं मानता, ये डेफिनेशन मुझे पसंद नहीं। तो फिर मैंने सवाल पूछा अपने आप आगे कि इसके पीछे फिर राज है क्या, इसके पीछे मिस्ट्री है क्या। तो वो मेरे लिए वो एक रास्ता बन गया। So I will not try to justify or answer these questions. ठीक है? बट थोड़ा कभी कभी प्रश्न आते हैं तो थोड़ा डिस्कशन हो जाता है, मतलब इट इज अ गुड थिंग। But it is a good thing. It is a good thing to raise this question. It is a good thing because it shows कि हाँ actively आपका mind जो है वो सोच रहा है इस बात को। राइट, You are participating. Participation के साथ ही क्वेश्चन आएंगे ना। या बिकॉज आपका ये सुनकर के मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ ये प्रश्न करने वाला, और भी है, हर्ष भी है। कि yes, ये तो शाश्वत प्रश्न है। ये जब तक मन है तब तक ये सवाल करेगा। ब्रह्मा जी की जब कहानी बनाते हैं वो बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी पैदा हुए, महाविष्णु की नाभि से कमल का फूल निकला, उस कमल के फूल में से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने पैदा होते ही पहला काम क्या किया, मैं कहां से आया, वो उसी में कूद गए अंदर।
कि भाई देख के हमें आया कहाँ से, वो नहीं मिला उन्हें जवाब। कहाँ से आया, कैसे मिलेगा जवाब? तो यहाँ एक्चुअली एक श्लोक है, मैं उसको दोबारा खोलता हूँ। वो जो कौन सा है वो, जिसमें बोल रहे हैं कि भाई वो जैसे जैसे कोई मुझे वो बचता है। हाँ वो है 12 12 है ना, या नहीं 11 है। 11 है। ये यथा माँ प्रबंधन्ते ता अस्थय भजाम्यहम्। जैसे जैसे कोई मुझे भजता है या मेरा अनुसरण करता है या मेरे पास आता है, सीख करने की कोशिश करता है। 11 नंबर है। मैं उसी को रेसिप्रोकेट करता हूँ। जो जिस प्रकार शरण चाहता है मैं उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। मैं उसी को उसी हिसाब से ब्लेस करता हूँ जो मुझे जैसे दिखता तो है। जिसको अपना एक पर्सनल गॉड चाहिए, मेरा कृष्ण है और वो मेरा भला करने वाला है या मेरा साथ देने वाला है, मुझे मुश्किल से निकालने वाला है, उसको मैं उस कृष्ण के रूप में सामने आके उसका भला करता हूँ, शुद्धा उसी में दृढ़ कर देता हूँ। मगर जिसका प्रश्न ये है कि कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं है, उसका मैं भला, उसको मैं जवाब उसी जगह से देता हूँ, उसको मैं वहीं लेके जाता हूँ जहां उसको ये पता लग जाए कि भाई हाँ, उसका ये सवाल ठीक था, क्वेश्चन ठीक था। वो ऐसा नहीं है कि भाई वो उसके लिए भी कहेंगे नहीं भाई तू तो मान, मैं तो आऊंगा, ऐसा नहीं करते वो। जैसे भी जो मेरे पास जिस भाव से आता है, मैं उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। भगवान ने बहुत बड़ी बात की है, और इसी हिंदू धर्म तो इसी के बेस पे बना हुआ है, इसीलिए हम लोग सब हर धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि जो जिस तरह से जिस रास्ते से वहां जाने की कोशिश करता है, भगवान उसको उसी रास्ते से उसमें ले जाते हैं। तो भगवान ने क्लियरली बोला है, जैसे आओगे वैसे ही मिलेगा। ये भी आगे बोला उन्होंने कि भाई जैसे लोग बाग जो संसार की चीजों को पाने के लिए करते हैं, उनको मैं संसार की चीजें देता हूँ। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं, अभी लिमिटेड टाइम में। जैसे आप रोज पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या अपना कर्म करते हैं, ओके, उसी में कुछ होती है, हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ उलझन होती है, तो उन उलझन को सुलझाने के लिए कोई रास्ता वो अपनाता है, उसमें से एक वो भगवान को भी याद करता है। ओके, मैंने देखा मेरी बहुत सारी चीजें जो हैं, जो भी मैं पाथ अडॉप्ट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 100% चीजें सॉल्व हो जाती हैं। हर दिन मेरा कुछ ना कुछ जो इशू होता है वो सॉल्व हो जाता है। बट when I go through everything, I find everything happens as a natural process. It doesn't come from somewhere and just you are blessed. No, it happens as a natural process. So I feel probably जो कुछ भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, वो मुझे मेरे नेचुरल प्रोसेस को ही आगे बढ़ने में हेल्प करता है। Everything will appear as if it was a natural process. Yeah. Nothing like ऊपर से कुछ आ गया ऐसा। If we started, मदन मोहन ने हमको ये स्टार्ट कराया लास्ट ईयर, पता नहीं अप्रैल में या कभी, it appears as a natural process. मदन मोहन ने जब ये शुरू किया, और या उससे पहले जो वो ग्रुप था व्हाट्सएप का, जब हम उसमें सारे जुड़े, it appears as a natural process. व्हाट्सएप का जो क्रिएशन हुआ और हम लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया, that creator, it appears as a natural process. It will always appear as a natural process. Only sometimes you will notice there must be something miraculous going on here. There must be something different going on here. It appears always like a natural process, but is it really a natural process?
or is it being motivated, guided by some other thing? That is where जब आप उसको अपने आप को हटा के वहां से देखेंगे, then you will say, यार ये तो miracles हो रहे हैं. I never expected that this problem will be solved in this way. Although it's solved in this way, although it looks like a natural process, but how is it happening? How is it happening that maybe I'm not going to try to take any credit or anything. ये मेरा कोई ऐसा अहंकार नहीं है उसके अंदर, ना लेने का ना लेने का. But maybe कोई ऐसा सवाल जो आपके 20 सालों से या 50 सालों से चल रहा हो, मे भी पिछले 1.5 साल में उसका आंसर मिल गया हो. It will look like a natural process, but is it? मैं जैसे आपने अपनी बात बताई, मैं भी आपको अपनी बात बताता हूँ. मेरा जीवन भी काफी, मतलब अगर बाहर से देखा जाए तो उथल पुथल में चला है काफी. कभी कभी लगता है कि नॉर्मल नहीं है ये. बट एनीवे, और कई बार ऐसे समय आए जिसमें इतनी मुश्किल आ गई, मन से इतना मुश्किल लगने लगा, फ्रस्ट्रेशन हो गई या दुख हो गया या परेशानी हो गई या जैसे भी, कि मैं भगवान को भी मैं गाली देता था बैठ के कि अरे ये तुम करते क्या हो भैया मेरे साथ में, हैं? ऐसे क्यों फंसा दिया मुझे इसमें. और फिर धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस से वो सॉल्व हो जाती थी प्रॉब्लम्स. मगर जब मैं बाहर बैठ के उससे फिर उसको मैं रिव्यू करता था उस पास्ट को, तो मैं बहुत हैरान होता था कि यार ये कैसे हो गया, ये हाउ डिड दिस हैपन. और ये भी मैं देखता था कि बहुत, एक बार नहीं बहुत बार, कि जो मैं उस वक्त चाह रहा था, जिस वजह से मुझे वो परेशानी हो रही थी, अगर वो मेरी इच्छा पूरी हो जाती तो जो मैं आज हूं वो मैं नहीं होता, मैं कुछ और होता, मैं कहीं और होता, मेरे मानसिक स्तर भी कहीं और होता, मेरा पारिवारिक, मेरा भौतिक, मेरा सारा आसपास कुछ और होता. क्या वो मेरे लिए अच्छा होता या नहीं होता ये तो मैं नहीं कह सकता, बट ये मैं जरूर जान सकता हूं कि जो मैं इस वक्त जिस जगह पर हूं मैं, वो अच्छा है. So, मतलब Ramana ji, I just want to say this, it always will look like a natural process. वो जो एक कहानी लास्ट ईयर हमने कही थी, वो जॉग करने वाला आदमी जो भाग के जाता था और बैठ गया वो पेड़ के गिरे हुए तने के ऊपर, और वहां पर वो एक वो जो कीड़ा था वो उसके नीचे आ गया, जिसकी वजह से वो अपनी शॉर्ट्स को धोने के लिए लॉन्ड्रोमेट में अपने जो रेगुलर डे होता था उसकी जगह किसी अलग दिन का, पता नहीं अशोक तुम्हें कहानी सुनी थी कि नहीं. I remember you said something like that. Yeah. Well, let me just briefly say that हम लोग टाइम को भी ख्याल रखेंगे. बट एक आदमी था, लड़का, यंग बॉय, वो जॉग करने जाता था, एवरी डे मॉर्निंग वो जॉग करता था. तो एक दिन वो जॉग करता करता जा रहा था, एक ट्रेल थी उसके ऊपर जाता था वो, और ट्रेल के एंड में जाकर जहां तक वो जॉग करता था वहां पर एक पेड़ था उसका गिरा हुआ तना था उसका, वहां वो बैठ जाता. तो वो एक दिन जब जाके वहां बैठा तो उससे बैठने से कुछ क्षण पहले पेड़ के ऊपर से वो जो बटरफ्लाई होने से पहले जो बनता है ना, हाँ, वो गिरा, और वो जो गिर के और वो पेड़ के तने के ऊपर चढ़ रहा, और ये इधर से आया और उसके ऊपर बैठ गया. तो वो तो मर गया, स्क्विश हो गया उसके नीचे. अब जो इसकी जो शॉर्ट्स थी वो वाइट कलर की थी, तो उस पर तो उसका निशान पड़ गया. तो अब उसने सोचा कि भैया मैं कल मुझे आना है फिर से, तो ये तो मुझे वॉश करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी जो थी शॉर्ट वो तो पहले से ही गंदी थी, और वो वेंसडे को जाया करता था लॉन्ड्रोमेट, मगर ये तो मंडे था.
तो उसने कहा कि आज मैं शाम को जाके लॉन्ड्रोमैट में अपने कपड़े धो लेता हूँ। तो लॉन्ड्रोमैट चला गया। लॉन्ड्रोमैट गया तो शाम मंडे इवनिंग कोई नहीं होता वहाँ, जनरली वीकेंड पे बिजी होते हैं। तो वहां पर एक और कोई यंग गर्ल जो थी वो वहां पर अपने कपड़े धो रही थी, लॉन्ड्री कर रही थी, और कोई नहीं था वहां। तो दोनों आपस में बात करने लगे, मशीन चल रही है, वो बात करने लगे तो एक दूसरे को भाग गए। वो लोग भाग गए तो वो लोग एक दूसरे के साथ डेट पे जाने लगे, मिलने लगे। और कुछ समय के बाद में वो लड़के ने उसको प्रपोज किया, उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद उनके 2 बेटे हुए। तो जो बड़ा बेटा था उसका जो ध्यान था वो काफी ज्यादा उसमें पब्लिक सर्विस में था, और जो छोटा बेटा था उसका ध्यान जो था वो काफी बिजनेस में था। तो दोनों बच्चे जब बड़े हुए तो जो बड़े वाला था वो तो पॉलिटिक्स में चला गया, और जो छोटे वाला था उसने बिजनेस शुरू कर दिया और वो मल्टी मिलियनर हो गया। और ये जो पॉलिटिशियन था इसने इलेक्शन लड़ा और ये जो था वो प्रेसिडेंट बन गया कंट्री का। और शुरू में जो भी उसकी पॉलिटिक्स थी उसके अंदर उसके छोटे भाई ने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो कहानी बढ़ती चली गई, सालों साल निकलते चले गए, ये प्रेसिडेंट बन गया। और उसके बाद में वर्ल्ड सिचुएशन ऐसी आई, उसके वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर उसने कहीं वॉर डिक्लेयर कर दी, और उसने अपने जो प्लेन्स थे उन्होंने जाके वहां पे बम गिराए। और वो जो बम थे जो दुश्मन की जो कंट्री थी उसके अंदर एक सिविलियन एरिया में गिरा। उस सिविलियन एरिया के अंदर एक फैमिली थी, उस फैमिली के हस्बैंड वाइफ और बच्चे थे, और उनको जाके चोट लगी। और उन्होंने भगवान की तरफ ध्यान देके कहा कि हमें ये क्यों किया, वगैरह वगैरह। तो कहानी इस तरह से चलती चली जाती। अब जो फैमिली वाले हैं उनको क्या लगा कि भाई ये जो वॉर हुई उसमें जो दूसरे देश के मुल्क के जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया बॉम्ब करने का, ये उसका ब्लेम करना चाहिए, उसने क्यों किया। तो इधर वाले जो थे वो अपनी और कहानी बना रहे थे। अब अगर हम इस कहानी को वापस चलते चले जाएं तो दोनों बच्चे या उस प्रेसिडेंट को पैदा होना, तो उसके माँ बाप की शादी, माँ बाप का मिलना क्यों हुआ, लॉन्ड्रोमैट में हुआ। तो लॉन्ड्रोमैट में क्यों हुआ, क्योंकि वो गलत दिन पे आया उसको निकर को धोने के लिए। तो गलत दिन पे क्यों आया, क्योंकि वो पेड़ पे बैठा था तो वो कीड़ा उस पे मर गया। तो कीड़ा क्यों मरा, तो कहानी को हम पीछे कहीं भी ले जा सकते हैं, बहुत दूर तक जाएगी। यस, मगर हमारा जो जीवन है हमें उसमें ऐसे लगता है कि कहानी बहुत छोटी सी है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक है। बट वो कहानी इतनी पुरानी है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो तो बोलते हैं तुम्हारे जन्मों से चली आ रही है वो कहानी। भगवान भी एक जगह कहते हैं ना, हमारे तुम्हारे जन्म कई हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं, मुझे सब याद है। तो ये जो कहानी है ये बहुत जन्मों से चली आ रही है। ये हम आज यहाँ बैठ के जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि इसी जन्म का बात हो कोई, इन द कॉन्टेक्स्ट या ये भी हो सकता है कि कहाँ के जन्मों से चली आ रही हो हमारी, हम नहीं जान सकते। तो भगवान ने उसको बोला तुम नहीं जान सकते, तुम्हें नहीं पता, मुझे मालूम है। तो अगर हम कहीं ऐसी हमारी सिद्धि आ जाए जिसमें हम ये सारी कहानी को पीछे ले जा सके, तो आप समझ सकते हैं कि वो कहानी कहां तक जाएगी। वो कहानी वहां तक जाएगी जहां तक ये जो मैं की आइडेंटिटी है वो पैदा हुई थी, और वो कहानी उससे पीछे जाएगी। वो कहानी हमें हमेशा एक ही जगह लेके जाएगी। उसका जो अंत है, उस कहानी का अंत या उस कहानी की बिगिनिंग कह लीजिए, वो बिगिनिंग हमें उसी जगह लेके जाएगी हमेशा जहां वो निर्गुण ब्रह्म खड़ा होगा। इसी बात से तो इसको हिंदुइज्म में एक जगह कहीं, मतलब नॉट दैट डायरेक्टली वो कहा है, सब समय की बात हुई है कि भाई कब स्टार्ट हुआ, कब बोले बड़े सर्किल का ना स्टार्ट है ना एंड है। तो मेरा कहने का, मैं सिर्फ राम विनोद जी बड़ी हम्बली में कह रहा था कि कई चीजें हमें ऐसे लगती है कि बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस चला जा रहा है,
बट ये कहानी अगर हम पीछे की तरफ लेके चले जाएं तो सिवाय एक जिसको वंडर कहते हैं ना, एक वंडर, उसके अलावा कुछ नहीं। अरे कहां से कहां चली जा रही है कहानी। या तो समय और मैं, ये दो भाव जब हैं तब कर्म का बंधन है, तब कर्म की थ्योरी है, तब कर्म योग है। इसलिए कहते हैं there are no chance meetings. Yeah, everything happens because due to reason. नहीं तो उसमें धर्म की जो सत्य की परिभाषा ये दी गई है कि जो भाई काल और समय से अतीत। ना वो परिवर्तन हो जिसमें। So going back to this basically, भगवान तो उसको ये सिंपल शब्दों में बोल रहे, भाई तुझे तो याद नहीं, मुझे तो याद है। और हमारी कहानी काफी पीछे चली जाती है। तो उसके अंदर फिर जब हम देखेंगे तो फिर हमें लगेगा कि यार ये सृष्टि सारी जो है ये माया का जो खेल है, जिसको दिस इज द गेम, वो गेम इज गोइंग ऑन। बट उस गेम के अंदर जो प्रकृति के रूल बने हैं, उन रूल्स को कहीं ना कहीं से वो शक्ति जो है उसको पूरा करती है। बट हैविंग सेड दैट, डोंट फॉरगेट कि हम लोग सिर्फ 1% हमको विजिबल है, नॉट इवन 1%, मतलब मैं तो एक बोल रहा हूँ बात, बट इट्स ए वेरी फ्रैक्शन ऑफ ए % ऑफ द टोटल यूनिवर्स जो है वो हमको, और नॉट सिर्फ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्सल प्रोसेसेस, जो यूनिवर्सल रेल्म्स, जो युग हैं, जो उसकी जगहें हैं, जो 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 स्पेक्ट्रम उसका जो वेवलेंथ की वाइब्रेशन की जो जगहें हैं, वो हमको विजिबल ही नहीं है। हमें मालूम ही नहीं कि कहाँ कहाँ से शक्तियां चल रही, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल शक्तियां चल रही हो कि आपके वो शुक्र में कुछ ये हो गया और बुध में कहीं हो गया, चाहे वो चल रही हो, चाहे वो उस रेल्म से चल रही हो जहां आपके जाने बिना कहीं ना कहीं से जो जिनको हम असेंडेड कहते हैं, असेंडेड मास्टर्स है, गुरुज, वो आपके लिए देख रहे हैं। मुझे तो ये बहुत बार अनुभव होता है कि भाई ये कहीं ना कहीं से मेरे लिए कोई देख रहा है भैया। तो अब होता है कि साला कैसा बेवकूफी का काम कर रहा है। हाँ, मुझे तो लगता है कई बार कि भाई अरे मैं तो इधर चला था, मगर उसने कहीं से मुझे आगे इधर रास्ते में रोड़ा लगा दिया कि भाई इधर ना जा, इधर खाई है। तो मैं तो अपने बुद्धि से तो वहीं जाता था, बट उसने कहीं ना कहीं से रोक के मुझे इधर दूसरी तरफ लगा दिया। तो कोई ना कोई देख रहा है मेरे। तो कौन से वो रेल्म हैं जिनको हमें विजिबली नहीं है। तो इट्स ए वंडर, मतलब अगर इफ यू थिंक ऑफ इट दैट वे, देन इट्स ऑल ए वंडर। यस, सभी लोगों ने, बड़े लोगों ने सिंप्लीफाई करके चीजें कही हैं कि जो भी होता है अच्छा ही होता है, बिकॉज यू डोंट नो कि वो किस लिए हो रहा है। आज सीमिंगली खराब चीज हो रही, लेकिन कल हो सकता है कुछ और ट्विस्ट आ जाए इसमें, इसकी वजह से। बिल्कुल। तो और तो भगवान तो बोलते हैं भाई देखो ऐसा है, इस प्रोसेस के अंदर ये जो तुम्हारा जो एक पाथ बना है इस जीवन का, जो पिछले कुछ कर्मों से चल रहा है, और अगर आज इस वक्त नाउ तुम उसको चेंज नहीं करोगे तो ये एक डिफाइंड है ये पाथ कि इस रास्ते से जा रहा है। बट नाउ जो है वो मोमेंट, उस मोमेंट के ऊपर तुम उस पाथ को डिफाइन चेंज कर सकते हो। यू कैन हैव ए मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग डिफरेंट। तुम्हारी लाइफ जो है वो इस मोमेंट के बाद तुम अपने आप उसको बदल सकते हो। बट अगर नहीं बदलोगे तो इस बात पे ये तुम्हारा भविष्य है, और इस भविष्य को कभी कभी रास्ता तुम्हारा बदलने के लिए, कभी कभी मैं दूर से ही रिमोट कंट्रोल से तुम्हारे रास्ते में रोड़े डालूंगा, मगर जब तुम उन रोड़ों को तोड़ोगे, कहोगे कि नहीं मुझे तो इधर ही जाना है, जब कोई रास्ता बचेगा नहीं, तब मैं इंटरफियर करूंगा, तब मुझे फिजिकली सामने आके तुम्हारे को इधर से भगाना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति के लिए जिसके भाव में एक पर्सनल गॉड है, पर्सनल कृष्ण है, जो उसके जीवन में आके उसको रास्ते दिखाता है, उसके लिए ये आवश्यक है कि वो कृष्ण उसको बोले
कि ऐसे टाइम में मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। अब वो किस रूप में आएंगे, कब आएंगे मालूम नहीं। कृष्ण तो बोल गए कि भाई मैं भगवान हूं, राम ने तो बोला नहीं, और भी कितने सारे आए, उन्होंने तो नहीं बोला। तो वो ऐसा भी होगा कि वो आएंगे और बोलेंगे नहीं और चले जाएंगे। व्हाट्सएप पे मैंने कुछ शेयर किया था, मकरंद टोल्ड कि लेट इट बी डिस्कस्ड इन आवर सेशन। हाँ नहीं, necessarily today, पर वो एक बात थी। हाँ, वो मार्स में पैदा हुआ था बच्चा, मंगल वाला, मंगल पे वो बच्चा चला गया, वहां से आके अपनी बातें बता रहा है। उसके लिए मेडिटेट करना पड़ेगा। कहते हैं ना इंग्लिश में कि जूरी इज स्टिल आउट, मतलब उसका कोई डिसीजन नहीं आ सकता अभी। हम लोग ये मेडिटेशन का टाइम आ रहा है, घंटे से ऊपर हो गया है। हाँ आपका बिल्कुल यूट्यूब आ तक गया। हो गया ना प्रभात जी? कुछ है इसमें और डिस्कस करने के लिए? नहीं, ये तो आप यहीं रोक देते हैं। वैसे तो हम लोग एक ही श्लोक पे हम लोगों ने काफी अच्छा डिस्कशन कर लिया है, वर्स 7 पे, और फिर यहीं नहीं इसको ठीक रोकते है। हैं। और आज आज की मेडिटेशन आज के डिस्कशन के हिसाब से ही करते हैं। बिल्कुल सही। वैसे मैं आज अपना आप मेडिटेशन करके आए होंगे, मैं भी करके ही आया था, तो आज ये दूसरा होगा मेरे लिए भी, और अच्छी बात है। चलिए, आज भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ठीक है, चलिए तो हाँ। मेडिटेशन करते हैं। तो आराम से बैठ जाएं। एक गहरी सांस लें और श्वास को छोड़ें। एक बार और गहरी सांस लें और श्वास को छोड़ें। आज का भाव है नमस्कार का भाव। अपने हृदय में नमस्कार का भाव लेके आए। जो कुछ भी आपके आसपास है उस सबको नमस्कार। चाहे वो जीवित हो या कोई मटेरियल हो, भौतिक हो। जो आपके पास नहीं है उसको भी नमस्कार। जो बहुत दूर है उसको भी नमस्कार। सारे सोलर सिस्टम को नमस्कार।
सभी सितारों को, पूरी गैलेक्सी को नमस्कार। जो भी आपके प्रिय है, जो भी आपका परिवार है, सबको नमस्कार। मित्रों को नमस्कार। जिन्हें भी आप जानते हैं, सबको नमस्कार। जिन्हें नहीं जानते हैं, उन्हें भी नमस्कार। सभी पशुओं को, पक्षियों को नमस्कार। सारी प्रकृति में जो आज है, सबको नमस्कार। जो कभी भूतकाल में थे, उन सबको नमस्कार। जो भविष्य में होंगे, उन सबको नमस्कार।
जो सब शक्तियां आपके आसपास काम कर रही हैं, जो शक्तियां आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, उन सब शक्तियों को नमस्कार। जिन शक्तियों ने अतीत में आपको प्रभावित किया, सब शक्तियों को नमस्कार। जो शक्तियां भविष्य में आपको प्रभावित करने वाली है, उन सब शक्तियों को नमस्कार। जो शक्ति आपको श्वास लेने में मदद करती है, उस शक्ति को नमस्कार। जिन शक्तियों से आपकी शारीरिक प्रक्रियाएं चलती हैं, उन सब शक्तियों को नमस्कार।
आपके भौतिक शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, जो ब्लड है, जो बोन्स है, जो मांस है, मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, सबको नमस्कार। अपने इष्ट देवता को अपने हृदय में लाएं। उस इष्ट देवता को नमस्कार। सृष्टि के अनुभव को नमस्कार। उस दैविक शक्ति को जिसके कारण से यह अनुभव संभव हुआ, उस दैविक शक्ति को नमस्कार। सर्व ब्रह्मांड को नमस्कार। ब्रह्मांड के सोर्स को नमस्कार।
ओ अपने हाथ जैसे अर्पण करते हैं वैसे कीजिए। ओम 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 ब्राह्मिक प्रेजेंस को नमस्कार करते हुए आंखें खोले जब आप तैयार। ओम हम्म हम्म हमें 1-2 मिनट कुछ बात कर लेते हैं फिर आज के लिए। हम्म हाँ जी। हाँ जी। Namaskar, everybody. That's it. See you next time. सो गया था अशोक? Yeah. मुझे जाना है कहीं. हाँ नहीं, we all have something or other. Okay. Take care. ठीक है, All right, चलिए bye. नेक्स्ट See you. वीक मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।